सर मेरा बस बाल थोड़ा खराब है। प्रॉब्लम। चलो, तो आपको थोड़ा जल्दी है तो आप लोग को बोनस देते। हाँ हाँ सर। क्या बोनस चाहिए आपको? डाउट्स थे ना सर, वो क्वेश्चन नंबर लास्ट सर, लास्ट 3। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस यू वांट टू सॉल्व। ठीक है, चलो यस सर। लेट्स डू लास्ट 3 क्वेश्चंस। सर उसमें से मैं बस क्वेश्चन 8 ही लिख पाया था। सर बोलूं? क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन बोलना है क्या? क्वेश्चन है मेरे पास। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8। So let us solve this question. ठीक है। So this is question number 8. A red car and a green car, identical except for the color, move toward each other in adjacent lanes and parallel to an x-axis. At time t equals to 0, red car is at xr equals to 0, and green car is at xg equals to 220 meters. That means this distance is given as 220 meters. Sir, which distance? This xg. x equals to 0, this is x equals to 220. If the red car has constant velocity of 20 km per hour, the cars pass each other at x equals to 44.5 meters. That means somewhere here. meters. So at this point, both the cars pass each other. So एक दूसरे को pass करेंगे ऐसे. ठीक है. So if it is a constant, it has a constant velocity of 40 km per hour. They pass each other at 76.6. So जब चलेंगे ठीक है. So speed is 20 km per hour. It passes at 44.5. The speed is more, 40 km per hour. Then both of them cross each other at 76.6 meters. Okay. तो अभी आपको ग्रीन कार का एक्सीलरेशन है इनिशियल वेलोसिटी पता. ओके. You have to find out initial velocity for green car and acceleration for green. ठीक है, ये बता. ऐसा क्वेश्चन. Suppose you consider this part, green वाला part. सर आप कुछ लिखा रहे हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं सर, हम शीट ही देख पा रहे हैं. बहुत कुछ दिख रहा है. अभी अभी आया है सर. हाँ ठीक है, एक बार देख लो. So क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? First they cross each other at x equals to 44.5 meters. ठीक है. तब क्रॉस करते हैं. इसलिए ऐसे शेयर करेंगे तो बेटर है. So first of all they cross each other at 44.5 meters. जब हमारा रेड कार का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर. So v equals to 20 kilometer per hour. Acceleration 0 because uniform speed here, constant velocity.
एंड सेकंड वाले केस में जो रेड कार है उसका स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलेरेशन 0. ओके, सो हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेड कार के बारे में, बट यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ग्रीन कार. समझ में आ रहा है? हमको रेड कार के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट ग्रीन कार का हमको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन. यस सर. तो कैसे कर सकते हैं इसको? Now for this green part, it is given that they cross each other at 44.5 meters. ठीक है? That means जो हमारा ग्रीन कार है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 220 minus 44.5. ना होगा? ये गलत है क्या? सही है, सही है. So this will be 5. This should be ऐसे कुछ होगा क्या? सीधे 175.5 meters. ओके, सो मान लो कि हमारा जो कार है इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है फॉर ग्रीन कार. सो जितना टाइम में हमारा रेड कार ये वाले पॉइंट पे आएगा उतने टाइम में ग्रीन कार आल्सो हैज टू कम टू दिस पॉइंट, है ना? जब रेड कार लेफ्ट साइड से आ रहा है ऐसे, एंड ग्रीन कार राइट साइड से आ रहा है ऐसे. सो इफ बोथ आर मीटिंग एट सेम पॉइंट, दैट मींस दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए आने के लिए, है ना? सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेड कार to reach 44.5 meters should be equal to time required by green car to reach 175.5 meters. Okay. Yes sir. So कितना टाइम लगेगा इसको? Because here the acceleration is 0, so time will be distance by speed. Displacement velocity. So यहाँ पे displacement होगा 44.5 meters divided by 20 kilometer per hour. This will be 20 into 5/8. This should be equals to 175.5 divided by. अच्छा, यहाँ पे हमारा acceleration भी है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे टाइम? We have to apply this. S equals to UD plus half at this point. ये लगा. So S equals to UG into T plus half of AG into T square. ठीक है? मान लें T है. If I just bring this equation here for clarity. Okay. So for the green car, the displacement is this is 175.5 equals to UG into time. Time यहाँ से निकाल सकते हैं 44.5 into 80 by 100 plus half of AG into T square. 44.5 into 80 by 100 plus. ठीक है? Yes sir. First equation. तो मुझे पहला इंफॉर्मेशन दिया था कि बोथ मीट एट 44.5 meters. यूजिंग दैट यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड केस में क्या दिया हुआ है? द रेड कार इज गोइंग लिटिल फास्टर. रेड कार का स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा. तो क्या होगा? रेड कार थोड़ा ज्यादा आगे जाएगा दोनों मीट करने के पहले, है ना? सो नाउ इन द सेकंड केस बोथ ऑफ देम आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है? सो ये डिस्टेंस कितना होगा?
Distance traveled by the green car. हेलो सर, Minus 76.6. कितना हो गया? 0.4 40 ऐसे सर आपका वॉइस एको हो रहा है। क्या वॉइस? ओ नहीं, अभी नहीं, एको हो रहा था सर पहले। अच्छा सर आप जस्ट थोड़ा वो समझा देंगे, टी रेड टू रीच 44.5 मीटर, टी ग्रीन टू रीच 175.5 मीटर कैसे इक्वल होगा? आई मीन सी ग्रीन कार कवर कर रहा है इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। तू रीच नहीं बोल सकती, तू कवर बोल सकती या लैंग्वेज चेंज कर दे। ओके तो दोनों को एक ही टाइम कैसे लगेगा? किसी का तो शायद स्पीड ज्यादा होना चाहिए। हाँ है क्या क्या? सही, मतलब किसी का स्पीड तो ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब वो ग्रीन कार का जो स्पीड है वो हाँ ज्यादा होना चाहिए, तभी वो रेड कार जितना कवर करता है ग्रीन कार उससे ज्यादा कवर करेगा हाँ उसी। ज्यादा होगा ना, वही हमको कैलकुलेट करना ओ है, दैट ओनली हैव टू कैलकुलेट। सो सेकंड केस में अगेन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेड कार to cover this distance 76.6 meters equals to time required by the green car to cover 143.4 meters. So this TG will be equals to 76.6 by 40 into 5 by 8. ठीक है, ऐसे आ रहा है। So again you can apply this equation s equals to half ut plus half at square for the green. हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर वही हाँ बोल रहा था। So ug into ये टाइम सब्स्टिट्यूट करो 76.6 into 18 by 200 plus half of 8 is so ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। ठीक है, you solve these two equations you will get the answer 44.5 into 18, this is 32 plus 5, 37 plus 4 41, 36 और 80 हो जाएगा, this 8.01 UG plus half of kg into 8.01 square, इसको approximately 8 ही ले सकते हैं बस। Similarly यहाँ पे I'm just trying to calculate कैसे कैलकुलेट, तो इसको लिख सकते हैं आप 76.6 into 9 लिख सकते हैं, this is 4 8 9 63 plus 5, so ये हमारा कुछ 6.9 के आसपास है। ठीक है, so now if you solve these two equations आपका आंसर है। ठीक है, 7 ले लेते हैं, 7 UG plus हाँ सर। 7 लेके सॉल्व कंसेशन देते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो सॉल्विंग these two equations you will get the answer, u आपका आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो समझ में आ गया? इज क्लियर? विजय रुतिशा, दोनों क्लियर? इज देवांजन, इज क्लियर?
ये जो उसके बाद ये बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, समझ में आया सर। देवांजन दिस क्लियर? हाँ सर। ओके, so the question number 8. क्वेश्चन 9 भी डिस्कस करना है क्या? सर क्वेश्चन 8 हो गया, मैं क्वेश्चन 9 खुद करूंगा, थोड़ा सा ट्राई। ठीक है, 9 खुद से ट्राई करो, ये 9 10 11 खुद से कर सकते हो, ठीक है? ओके, हाँ सर, 9 10 थोड़ा खुद से करूंगा। ये क्वेश्चन है राइट। तो क्वेश्चन 8 हो गया अभी, 9 10 11 क्वेश्चन। तो अभी करेंगे क्या 9 10 11? हैव यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चंस 9 10 11? ये देवांजन शिवांकर यस सर। हाँ सर बोलिए। 9 10 11 हो गया क्या? नहीं सर, नहीं सर। अटेम्प्ट नहीं किया? ओके, फिर अभी करना इसको, ठीक है? इसको ट्राई करो अभी, देन आफ्टर सम टाइम विल गो अहेड। ठीक है, हम अभी करते हैं, आप लोग को ट्राई करो। You can try this for 20 minutes. हाँ सर।
हेलो हाँ बोलिए शुभांकर। सर, देखा सिंपल है सर, लाइट चला गया था सर एक्चुअली। ठीक है ठीक है। ठीक है।
Okay, sir. I usually leave
हेलो हाँ बोलिए रिजू। हेलो सर। यस। सर मैं इतना देर से कंप्यूटर में कर रहा था सर, वहाँ मेरा माइक्रोफोन नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल में शिफ्ट कर लिया। ठीक है ठीक है। 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन माइक्रोफोन नहीं चल रहा है सर, एक मिनट। ईयरफोन्स का। Yes, how many questions then? Shubhankar, Devanjan, Riju? सर मैं 11वें में हूँ। 11th, okay. Devanjan? कितना है क्वेश्चन? सर कर रहा है। कौन सा चल रहा है वही तो होंगे पता चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? 11th क्वेश्चन बहुत टफ है सर। ओके, ट्रेन वाला क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है तो ऐसा करते हैं, लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अगर बहुत सर जस्ट 2 मिनट सर। 11th वाला मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ थोड़ा, मतलब आधा लिखा था। ठीक है लिख लो। लेंदर लिख लो, इसको लिखना। हाँ सर बस 2 मिनट। थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, नहीं तो बोर होगा आपको। बहुत देर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अटके हो। अच्छा ठीक है। So I will begin the new topic in 2 minutes. 2 minutes में start करें। यस सर। अच्छा ब्रो, आधे घंटे थोड़ा कम होगा। हाँ सर। नहीं आपको नहीं बोला सर। Okay, so let us begin a new topic. थोड़ा नया लाइफ होना चाहिए। आप लोग बोर हो रहे हो। ठीक है। तो लोग है तो क्लास में। इस देवांजन रिजू। सर सर जस्ट आंसर क्या सर, 1 मिनट। क्या क्या? हाँ सर। आप लोग का वीडियो ऑन किए 2 मिनट के लिए। सर रह गया। सर मैं वीडियो ऑन करूँ? हाँ सबको बोलो।
ओके वीडियो में लाइट दिख रहा है रिजु ऐसे क्यों? वीडियो में लाइट दिख रहा है लाइट सर पीछे लाइट है और सर लैपटॉप में सर वो वेबकैम फोकस कर लेता है, लाइट ज्यादा पकड़ नहीं पाता। हाँ हाँ सर। देवांजन भी गायब हो गए क्या हो गया? बिजी चला गया क्या? अच्छा हाँ सर बट ठीक है। ठीक है पीछे लाइट है सर। ठीक है चलो सो सब लोग जगह है क्लास में रिव्यू का तो वीडियो नहीं। तो क्लास की शुरुआत में वीडियो है एक छोटा सा हम लोग दिख रहा है सबको वीडियो देख रहा है बट वीडियो चल नहीं रहा है। हाँ सर ऑन नहीं किया आपने? हाँ सर वीडियो चल। ठीक है चलो देख सकते हो क्या you are able to hear the sound right? Sir, what's it though? यस सर। No sir. अभी सर थोड़ा कट कट कर आ रहा है सुना थोड़ा सा। अभी now is it okay? सुनाई नहीं सर आप तो पॉज कर रहा है। This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and by pumping out the 30 tons of air. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one, and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. Back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all.
reason that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. ठीक है, सोलो को वीडियो देखा? सर मैं थोड़ा पार्ट मिस कर दिया हूँ, मेरा नेट चला गया ना सर। हाँ ठीक है, वो पता फर्स्ट टाइम क्या में तो बॉल आगे गिरा। वो हवा था उस वक्त। फर्स्ट केस में क्या था कि यहाँ पे हवा था, फर्स्ट केस में क्या था, हाँ, पहले बॉल गिर जाता है फिर फेदर्स आते हैं, that is due to air resistance because air is present there, ठीक है। एंड सेकंड केस में क्या करते हैं, इट इज कंप्लीटली वैक्यूम, तो वैक्यूम क्रिएट होने के बाद क्या होता है, बोथ ऑफ देम फॉल एट द सेम टाइम, ठीक है। सो दिस इज अ फेमस एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो, गैलीली, नाम सुना होगा आपने? हाँ सर, टेलीस्कोप वाला। Yeah. So this is one of his famous experiments. Yeah. तो ऐसे होता है, ठीक है। ये सब वो वीडियो दिखा, एटलीस्ट देखा तुमने कैसे? हाँ सर देखा सर, ये हम बीबीसी में भी देख चुके हैं। इस देवांजन एंड रिजू? हाँ सर, हाँ। ठीक। So now topic of today's discussion is free fall acceleration. फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल मतलब क्या है, ठीक है। So first of all, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में, इफ अ बॉडी इज इन फ्री फॉल कैसे हो सकता है, तो बॉडी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सो अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, if you neglect the air resistance, then the motion is a motion of constant downward acceleration, ठीक है। इसका वैल्यू होता है g, acceleration due to gravity कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी एक बार आपने फेंक दिया, ठीक है, अगर वो हवा में है, then we say that that body is in free fall, so free fall बोलते हैं, ठीक है। फ्री फॉल हो सकते हैं फिर not in contact with the surface, so कोई भी अगर बॉडी है, it is not in contact with any surface, so we say that it is a free fall, okay। so आज हम लोग ये देखेंगे, अगर फ्री फॉल में हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, so acceleration is constant, which is acceleration due to gravity, right? So first case में क्या हुआ था, there was feather था हमारे पास, and there was a ball also, ठीक है। So what happened when both of them were released, feather धीरे धीरे गिरता है, पहले इधर जाएगा, फिर थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है। So feather falls very slowly towards the ground, but the same ball it will fall very fast, जितना देर में फेदर नीचे आएगा उसके पहले बॉल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो फेदर को एयर रोक लेता है। फर्स्ट केस में एयर रेजिस्टेंस होता है, हाँ मतलब, बट फॉर द सेकंड केस देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। सो इसके वजह से क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ ऑफ देम फॉल एट द सेम टाइम। कैसे लिखा इसको, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, बोथ ऑफ देम फॉल एट द सेम टाइम, जो जितने जल्दी हमारा ये फेदर गिरता है नीचे, इन द सेम टाइम द बॉल आल्सो कम, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है,
सो बेसिकली इसी को फ्री फॉल बोलते हैं. फ्री फॉल मतलब वो फ्रीली गिर रहा है, किसी के कांटेक्ट में नहीं, हवा में उड़ रहा है. ठीक है. सो ये समझना बहुत जरूरी है. नाउ टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब सच मोशंस हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जिस पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है. यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. सो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं और द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, देन वी से दैट द डायरेक्शन इज पॉजिटिव. ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव. एंड द बॉल इज ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, देन उस वक्त उसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. सो if the displacement is upwards, the displacement will be positive. If the displacement is downwards, it will be negative. Velocity is upwards, it will be positive. If it is downwards, it will be negative. Same is the case for acceleration. Okay. So that is why in this case, the acceleration due to free fall is always taken as minus g. इसको हम लोग हमेशा माइनस जी लेते हैं. ठीक है. क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है बट एक्सेलेरेशन नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है. दैट इज व्हाई वी टेक इट एज नेगेटिव माइनस. ठीक है. सो ये हमारा पहला चीज. ये सबको समझ में आ गया? एनी डाउट्स इन दिस? इज देवांजन बिजू? यस सर, समझ में आया सर. हाँ सर. Okay. Now based on that we can do a very simple question. ठीक है. So इसमें दिया हुआ एक pitcher throws a baseball up along a y-axis. That means एक आदमी है is throwing a baseball upwards with a speed of 12 meters per second. ठीक है. So then what will happen? The ball goes up. The ball धीरे धीरे ऊपर जाएगा, and after some time it will stop. थोड़ी देर रुक जाएगा, and then again it will come downwards. सर v इक्वल्स टू udt का फॉर्मूला लगाना है. ठीक है. पहले बताना. So if you see at this part, the acceleration is negative, minus g. So जो हमारा बॉल है, it is ascending upwards. ठीक है. तो जो हमारा magnitude of velocity है, it is decreasing. Right. तो स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रहा है. And जब बॉल नीचे आ रहा है, that time again acceleration is minus g. ठीक है. But here magnitude of speed is increasing. बॉल जब नीचे आएगा तब उसका स्पीड बढ़ेगा. Okay. So this is the motion of a ball. आप ट्राई कर सकते हैं क्लास होने के बाद. You can try to throw a ball or pencil or ball कुछ फेंक के देख सकते हैं. बॉल ही अच्छा रहेगा. And try to observe the motion of the ball. How does the ball move? ठीक है. तो ऐसे रहता है. You will see it like this. Now one more observation you will see. जब बॉल जस्ट ऊपर पहुंचता है टॉपमोस्ट पॉइंट पे, at that point the velocity or the speed of the ball is 0. ठीक है. जस्ट जब ऊपर पहुंचता है, that time the speed of the ball becomes 0. तो यहाँ पर ठीक है. So टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 रहता है बॉल का. जब बॉटम से टॉप जाता है तो स्पीड कम होता है, टॉप से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ता है. ओके. ऐसा है. Now first question is how long does the ball take to reach its maximum height? Now we know that there is a motion of constant acceleration. That means we can apply v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2s. We can apply these equations and solve the question. Okay, because the acceleration is constant. Minus 0. Okay. So
In the first question, it is asked, how long does the ball take to reach its maximum height? So at maximum height, the speed of the ball is how much? 12. This is 0. Oh हाँ sorry 0. So final होगा ना? At maximum height. Yeah. Yes sir. ये हमेशा 2 होगा actually. So आपको टाइम पूछा गया. You know initial velocity is 12. So you can apply v equals to u plus at. So v equals to plus 12. Because upper direction में the velocity is plus 12 plus 18. So the acceleration is how much? This is minus g into t. So ये भी सर important. एक्सेलरेशन हर वक्त माइनस ही होगा. हाँ हमेशा माइनस. सर तो इसमें सारे फॉर्मूलेज में तो माइनस 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 हो जाना चाहिए. नहीं acceleration is minus g. तो ये ut plus half at square है. जब a सब्स्टिट्यूट करेंगे तब माइनस g सब्स्टिट्यूट. यस सर. ठीक है. So solving this, you get time as 12 by g. 12 by 9.8. तो solve कर सकते हैं. Okay. Yes so this sir. is the first one. Now second part is, what is the ball's maximum height after its release? ये पूछा गया. That means the displacement है, this is maximum height. Okay. So you know initial velocity is plus 12 meter per second, and at the top the height maximum होगा हमारा. So at this point the velocity is 0, final velocity. So you get 0, and acceleration equals to minus g. So again you can solve this. You can write v square equals to u square plus 2s plus 2 into minus g into h minus. So thus you can find the maximum height. This will be 12 square by 2g. Solve करेंगे तो इसका भी आंसर मिलेगा. Okay sir. ठीक है. Now third part is, we want to find out how long does the ball take to reach a point 5 meters above its release point. ठीक है. So ये हमारा release point है. So this is our release point. यहाँ से बॉल को फेंका गया, and इसे हम लोग 5 मीटर ऊपर देखते हैं. ठीक है. Now how to solve this? The initial velocity we know as plus 12 meter per second. Final velocity we don't know. We know acceleration as minus g. आपको time निकालना है. Now because it is given that from the point of projection the ball is 5 meters upwards, so we can take the displacement as plus 5 plus positivity. Okay. So now you can solve s equals to ut plus half at square. So this will be 12t plus half of minus g into t. Solving this, you get the value of t. Okay. ठीक है. सबको समझ में आ गया? Is this clear, everyone? Yes sir. Is Devanjan Riju clear? हाँ सर. Okay. So this is a new topic. Next class में हम इस पे questions करेंगे. And I'll just share this notes. आप इसको notes copy कर सकते हैं. Second thing, आपका कल टेस्ट होगा. ठीक है. Based on this, whatever I taught till now. अच्छा कल भी टेस्ट है. ओके सर. हेलो सर. सर कब टेस्ट है? कल नहीं दे पाऊंगा. हाँ बोलिए देवांजन. कल नहीं दे पाऊंगा सर. कल कल नहीं होगा सर. क्यों?
सर हर संडे एग्जाम होगा क्या? फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है क्या? नहीं ना? सर ज्यादा टफ होगा क्या? नहीं नहीं, ट्यूसडे नहीं जाएंगे। ट्यूसडे को तो क्लास है ना। 3 क्लास और एक एग्जाम ज्यादा हो गया सर। अरे ये तो शुरुआत है बेटा, अभी तो आगे हो रहेगा। ऑल इंडिया रैंक 100 लाने के लिए एडवांस, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है सर टॉपिक क्या है तो? ये जो मैंने पढ़ा है उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये भी मतलब अभी जो आपने पढ़ा है वो भी इंक्लूडेड होगा? इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा सर, आप बस फिर इतना भी ही इसका पढ़ना। नोट्स थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ बस हाँ नोट सर भेज दीजिए। ठीक है। सर कल क्या वो एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन वाला वो होगा? हाँ होगा सेमिनार, अच्छा टाइमिंग में बता दूंगा ग्रुप में, आप देख सकते हो। ओके सर। ठीक है, यस सर, ओके बाय सर। एग्जाम का टाइम क्या है सर? कल का एग्जाम का 4 से 5। लास्ट वीक जो था वही, लास्ट वीक क्या टाइम? 4 से 5 था सर। 4 से वही। ठीक है, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट एग्जाम का सर वो आंसर की थोड़ा भेज दीजिए ना सर। ठीक है, अभी भेजता हूँ बस क्लास होती है। हाँ मेरा तो गलत हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। गुड नाइट।